Hi guys, it's Dr. Shubha Jyoti and welcome back to my channel. And in this video, I just wanted to talk to um, residents basically who are going to be joining just now, or maybe you have already joined your residency, and just wanted to give a little bit of my own advice that I feel is important to know, because especially for people like me who are not too social, who are not extroverted, um, who don't get involved too much with a lot of people. Because to be very honest, I am doing my senior residency and I am actually quite late for it, but even though I have to do it because I feel like I want to keep my options open for working in a medical college later on for the future. So that's why I'm doing it. So anyhow, for the ones who are following me already know about it. But anyhow, what I am seeing through my journey right now is that even though I am an SR, I'm a senior resident. Still, there's a lot of things going around. Okay, I am not involved in any kind of what do you say, groupism or politics kind of things, but I see things happening around me, and it can be kind of overwhelming, especially for people like me. And when you are somebody new in a place like that, especially as a JR, because being a junior resident, you don't even know your own work. So it's like you also have to learn at this place, irrespective of how it presents to you. So yeah, I just wanted to give you a few tips here and there that I feel somebody like me should know. So yeah, let's talk about that. The first thing I want you to understand here is सी यू विल टेक टाइम टू लर्न. आपको हर चीज़ एक दो दिन में या एक महीने में, 2 महीने में भी. See, medicine is very vast, irrespective of the field that you are choosing for yourself. Whatever you choose to do your residency in, whatever specialty it is vast. ठीक है, it's not easy. ठीक है, MBBS करते टाइम पे ही आपको रियलाइज हो गया होगा how vast each and every subject is in your MBBS. ठीक है, तो आपने जो भी सब्जेक्ट उठाया हो, एवरी एवरी फील्ड इज अ लॉट. ठीक है, आपको ये नहीं कि 1-2 महीने में आपको सब कुछ आ जाएगा. इट टेक्स टाइम. Being an anesthesiologist, I can tell you it takes time to orient yourself to everything, to gain that kind of confidence कि हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं कर पा रहा हूँ चीज़ें. इसमें at least it will take you about more than 6 months. ठीक है, I took more than 6 months for this, and only then I was able to do all of the things. I was oriented properly to everything. But the pace is different for everybody. So the first thing I want you to remember is don't compare yourselves to anybody else. ठीक है, क्योंकि जैसे मेरे साथ 11 लोग थे. आई हैड we were a total of 11, so I had 10 other people with me. And मैं ये बोलना चाहती हूँ that for me it was like I felt like I was the slowest. I was viewed as someone who's really slow at her work. ठीक है, लेकिन see, what other people say is not always true. I just want you to know this. क्योंकि ऐसा होता है ना कि इनिशियली नहीं समझ में आता, दूसरों को आपका काम नहीं समझ में आता, दूसरे अपने परसेप्शन के लेवल से आपको जज करते हैं. Just because someone is not speaking up so much, not showing that they are actually doing the work. क्योंकि मेरे अंदर ये था ना, मेरे साथ day one से यही दिक्कत थी कि I'm not someone who is going to show off that I'm doing that something. मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे आपके अराउंड जो दिखावा अच्छे से कर देंगे, काम कम करेंगे, ऐसे लोग होते हैं. ठीक है, एंड उनके सामने आप ठंडे पड़ जाओगे. उनको, अपने सीनियर्स को ये लगेगा कि दूसरे बंदे सब अच्छे से काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो. ये भी एक चीज़ हो सकती है, मेरे साथ हुई थी. सो इफ़ यू आर समवन लाइक दैट कि आप चुपचाप अपना काम कर लेते हो, शोर नहीं मचाते उस चीज़ का, तो हो सकता है आपको दिक्कतें आएंगी. बट आई वुड जस्ट से इट्स ओके. डोंट टेक एवरीथिंग टू हार्ड. ठीक है, जो आपके आसपास होंगे, जो आपके बारे में ये सारी बातें कर रहे होंगे, उनको नहीं पता कि आप कितना काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. ये मैं आपको अभी भी बता सकती हूँ, बिकॉज इवन इन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल दैट आई वर्कड इन, देयर वर सीनियर कंसल्टेंट्स हु जज्ड मी एंड फेल्ट लाइक आई एम स्लो. बट व्हेन आई मूव टू फ्रीलांसिंग, आई वाज समवन who was viewed as a person who knows her work. मुझे अभी भी, I have joined a medical college but I'm still getting calls to come and do duties over there. ठीक है, तो they have realized कि मुझे काम आता है, मैं संभाल लेती हूँ चीज़ें. तो it's like, there are some people who will be able to see your worth, some people will not be able to see your worth. Similarly, like I had a
सीनियर हु इवेंचुअली सॉ दिस, ठीक है, एक सीनियर थी मेरे ही जगह से बिलोंग करती थी, एंड शी काइंड ऑफ सॉ कि यार ये तो काम कर लेती है, ये करती है, बट अदर पीपल आर नॉट सीइंग दिस थिंग, सो शी वाज वन ऑफ दो सीनियर्स हु एक्चुअली सपोर्टेड मी. तो ऐसा कोई बंदा आपको भी मिल ही जाएगा, ठीक है, आपको भी ऐसा कोई सीनियर, ऐसा कोई को बैचमेट, कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा जो देखेगा कि यू आर ऑल्सो डूइंग द वर्क, यू आर ऑल्सो पुटिंग इन योर हार्ड वर्क, एंड आपको भी सपोर्ट मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से. कभी कभी होता है कि डिफिकल्टीज आती है, रेसिडेंसी में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज आती ही हैं, बट या यू विल फाइंड योर ओन वे, इट्स ऑल राइट इफ समथिंग लाइक दिस हैपन्स. I would just say the most important thing is don't compare yourself to anybody. Even if people are saying 100 things, give yourself time. These 3 years that you get in your residency is for learning. ठीक है, मेरे साथ भी एक बार ये हुआ था. मेरी एक सीनियर थी, I remember I was not able to do an intubation. I think it was around my first year, the end of my first year or somewhere like that. तो तब मैं बहुत मतलब I was very put down at that point of time, and I had a third year senior who saw me in the dressing room that I was not doing well. I was kind of crying, and she came up to me. She said, "यार, you have 3 years. ठीक है, ये मत समझो कि आपको सारे procedures आ जाने चाहिए in the first year itself. It's all right. You have 3 years to learn your own procedures, learn everything, ठीक है, related to anesthesia. Similarly, if you are going to some other field for your residency, you have 3 years to put in. So it's all right. Everybody has a different pace of learning, and it's okay. Some people will be able to pick up very fast, ठीक है. सम प्रोसीजर्स भी जो मैं कह रही हूँ, कुछ लोग बहुत जल्दी पिकअप कर लेंगे, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है. इट डिपेंड्स, ठीक है. इवन फॉर मी, आई थिंक प्रोसीजर्स, काम वाम सब जो बोला जाता था वो मैं कर लेती थी, बट आई थिंक प्रोसीजर्स, येस, आई डिड पिक अप अ लिटिल लेट, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मुझे प्रैक्टिस के साथ ही आता है, एंड आई फील फॉर एनी नॉर्मल काइंड ऑफ अ पर्सन प्रैक्टिस के साथ ही आता है. And I would just say every person is different, so just don't compare yourself to anybody. You will eventually learn. It's all right. It's completely normal to feel like I am not good enough. Maybe this was not something that I was supposed to be doing. It is a normal feeling, and it's okay. And give yourself time. I would just say give yourself enough time. It's okay. Like I said, it's a vast field. Every medical field is so vast, and you need time for yourself to pick up to that pace. ठीक है, तो इट्स ऑल राइट. गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर सेल्फ एटलीस्ट दोज 3 years that you have taken up for yourself, and time will help you gain everything. ठीक है, it will, आपको दिखेगा धीरे धीरे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बिकॉज एवरी डे यू आर एट द सेम प्लेस डूइंग सिमिलर थिंग्स एवरी डे. आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, बी इट एनी फील्ड. सो इट्स ओके, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीथिंग एंड गिव योर सेल्फ इनफ टाइम. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू. The second thing that I want to be telling you is, see, like I already said, you will learn things with time. But what is in your hands right now at this point of time is to be sincere. Okay, by being sincere, I mean like, see, if on the first day your seniors are teaching you something, try and remember these things. ठीक है, या आप लिख लो उसको जो भी वो आपको बता रहे हैं, या फिर discuss it with your friends, your batchmates after they are done teaching you, something like that, something to keep a track. क्योंकि आपको बार बार चीज़ें लोग नहीं समझाएंगे. if they have taught you once, they will not teach you again and again. and मुझे पता है कि चीज़ें लर्न करने में टाइम लग जाता है, but obviously not everybody will keep teaching you the same things. So it's important to keep track of what they have already taught you, because again, if you miss out on these things that has already been taught, then also you will get to hear like people will taunt you about it. ठीक है, तो better होता है कि whatever they are teaching you, note it down and remember all of those things. Plus I would just say, देखो ओटी में आते हैं सीनियर्स, दे कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये होता है काफ़ी बार कि आपको कुछ कुछ सवाल आ जाते हैं आंसर करने, कुछ कुछ सवाल आपको नहीं आ पाते. लाइक व्हेन आई वाज न्यू इन द ओटी, अब मैं मसल रिलैक्सेंस और ये सब तो एमबीबीएस में भी पढ़ा करते थे, तो मुझे कुछ सवाल इन्होंने पूछ लिए थे स्कोलिन पे एंड एट्राक्यूरियम और ये सब चीज़ों पे, और मैंने थोड़ी बहुत बता दी थी. बट मे बी आई वॉज स्टक इन बिटवीन समवेयर व्हेन दे वर आस्किंग मी इन डेप्थ क्वेश्चंस. वो पूछे जा रहे थे, मैं बताई जा रही थी, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे स्टार्टेड आस्किंग मी हार्डर क्वेश्चंस. सो देन उस पॉइंट पे आके देन दे वर लाइक, ओके यू हैव टू रीड दिस एंड टेल मी टुमारो. तो ये मैंने देखा है बहुत बार, यहाँ भी मैं देख रही हूँ मेडिकल कॉलेजेस में कि ये जो बच्चे हैं जिनको हम बोलते हैं कि कल पढ़कर आना,
दे मतलब वो गायब हो जाते हैं अगले दिन, एंड दिस इज नॉट अ गुड हैबिट. ऐसा होता है कि सीनियर खुद आता है उस जूनियर के पास, पूछता है तुमने पढ़ा जो कल मैंने बताया था, एंड दे विल बी लाइक नहीं पढ़ा. So this is also something I would say it's not being sincere. ठीक है, तो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई सीनियर आता है आपके साथ, कोई टॉपिक डिस्कस करता है, बोलता है कि ये कल पढ़कर आना है, तो आपको कल पढ़कर भी आना है, एंड यू शुड गो अप टू देम एंड से कि ये मैंने पढ़ लिया है, यू नो I've read the topic that you asked me to read yesterday, and ये है, मतलब जो भी वो पूछेंगे आपको कि क्या पढ़ा, तो आप उनको बता दो. तो this is being sincere, this is being a kind of a person that seniors will eventually start to like. So I would say do this on a regular basis. ये नहीं कि एक बार आपने करा और एक बार छोड़ दिया, then they will not be liking you. Okay, तो ये आपको करना चाहिए, I would say. Other than this, I would say being sincere is also being punctual. ठीक है, आपको लेट नहीं होना है, जो भी टाइमिंग्स आपको बताई जा रही है, यू शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम, क्योंकि दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज इन योर कंट्रोल. लाइक आई ऑलरेडी सेड, यू विल बी लर्निंग इवेंचुअली विद टाइम. Okay, it's all right. No, what do I say? Don't be hard on yourself कि सब कुछ जल्दी जल्दी सीखना है, क्योंकि टाइम लगता है, उसमें कुछ नहीं है. बट आई वुड जस्ट से बी ऑन टाइम. इस चीज के लिए डांट मत खाओ कि लेट कैसे हो गए, ये कैसे वो कैसे. ये मत करो कि यार आपको कुछ काम दिया गया है, पीएससी करने बोला गया है, और आप ओटी से निकल करके कहीं बाहर ही चले जा रहे हो. ऑल दीज थिंग्स, इट्स नॉट अ गुड हैबिट. इट्स नॉट great idea to make your seniors angry for no reason at all. This is kind of a negligent behavior, and ये आगे चल के भी आपको काम में नहीं आने वाला है. So I would just say be sincere with your work. Do as your seniors are asking you, and it's okay. Just do what is in your control. That's why I'm saying be sincere. Read whatever your seniors are telling you to read, and that is for your own good. That is so that you keep learning more and more. So yeah, definitely you should be doing that for yourself, and be on time. Procedures you will eventually learn. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं. Other than this, I would say when you're getting through your residency, be ready to be misunderstood, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी चीज है. ऐसा आपके साथ बहुत बार होगा, और अभी भी मैं देख रही हूँ जो मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ अभी हुआ है एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है. मेरी एक जूनियर है, तो ये हुआ था बेसिकली कि मैंने जो अल्ट्रासाउंड मशीन है ब्लॉक देने के लिए मैंने मंगा ली थी. देयर आर 2 फ्लोर्स, तो मैंने ऊपर के फ्लोर से मंगा ली थी, एंड आई स्पेसिफिकली टोल्ड द थर्ड ईयर जेआर कि यार अगर अवेलेबल है तो मंगा लो, अगर ऊपर कोई ब्लॉक लगनी है, अगर कुछ काम है अल्ट्रासाउंड का तो मत मंगाओ, वहाँ रहने दो. बट या सो शी वाज लाइक ऊपर कुछ लगना नहीं है, मंगा लो. तो मंगा के मैंने ब्लॉक लगा लिया, एंड देन इट सीम्स लाइक देयर वाज अ ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग और समथिंग कि यार ऊपर भी लगना था, कुछ था, ये था वो था. तो इसमें भी लाइक ये हुआ ना कि वहाँ भी ऊपर कोई कंसल्टेंट थी तो जिनको लगाना था, ऐसा कुछ था. तो मुझे उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट जो जूनियर थी उनको डांट पड़ गई. ठीक है, शी गॉट द स्कोल्डिंग्स एंड शी केम अप टू मी, शी इज लाइक मैम यूएसजी मंगा ली थी, उसके लिए मुझे डांट पड़ गई, ये है वो है. सो नाउ आई एम a friendly senior, so she came up to me and said all this, but obviously you should not be doing this with your seniors. This is sorry, this is why I'm telling you, क्योंकि ये नहीं करना है. आप अपने मतलब जितने भी फ्रेंडली सीनियर हो, क्योंकि मैं मतलब अपने सीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. रीजन बीइंग, आई एम योर सीनियर, व्हाटएवर बी इट. आई मे बी नाइस टू यू, आई मे बी फ्रेंडली, आई मे बी एनीथिंग, बट अगर आपका बिहेवियर ऐसे टाइप का रहा ना कि आप आके बार बार मुझसे रैंट किए जा रहे हो, ये वो, तो मेरा ये क्या बोलूँगी, मेरा इंस्टिंक्ट रहेगा कि मैं आपसे दूर भागूं. ठीक है, मेरा इनर इंस्टिंक्ट रहेगा. आई बी लाइक यार हमेशा रोती रहती है, हमेशा कंप्लेन करती रहती है, आई डोंट वांट टू बी अराउंड दिस पर्सन. मैं बस मतलब मैं किसी और जूनियर को ढूंढूंगी कि जाके मैं कुछ सिखा दूँ, कुछ बता दूँ, इससे मैं दूर भागूंगी. ठीक है, तो ये ऐसा हो गया कि आप कोई अच्छा सीनियर भी आपको कुछ अगर जो सिखा सकता था, आप उनसे भी दूर, उनको भी दूर भगा रहे हो आप. तो ये नहीं करना है आपको. रैंट नहीं करना है सीनियर्स के पास जाके, बिकॉज इट्स वेरी, मतलब यार आप आदत डाल लो चीजें सुनने की. एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो. इट्स ओके, नोबडी. वो मेरे को आके ये बोल रही है कि यार मैम मेरी तो कोई गलती नहीं थी, ब्लॉक तो आप लोगों को लगानी थी, ये थी वो थी. सो दिस इज नॉट basically the way to talk to your senior. If you are getting scolded for something by another senior or something like that, even if it's not your mistake, आदत डाल लो सुनने की, क्योंकि it's your residency, it is that time of your life कि आपको चीजें झेलनी है. ठीक है, और इतना भी
बुरा हाल नहीं है फिलहाल लोगों का, क्योंकि ये जो भी जनरेशन है दे आर नॉट टेकिंग टू मच, कुछ भी नहीं झेल पा रहे हैं। तो मतलब मैंने देखा कि काफी कंप्लेन कर देते हैं लोग, स्पेशली अगेंस्ट मेल सीनियर्स एंड स्टफ। ये मेरे प्रीवियस मेडिकल कॉलेज में भी हुआ था, यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि ऐसी सारी चीजें हो रही है। लाइक मजाक में कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, किसी भी चीज को घुमा फिरा के बता देना कुछ अलग ही तरीके से, ये सब बहुत चल रहा है। बट ऑब्वियसली आई वुड जस्ट से दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। आप ये सब चीजें करोगे तो आपको यूजफुल कुछ नहीं होगा इस चीज से। फॉल्स एलिगेशंस किसी पे लगा के आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऑब्वियसली अगर कुछ सच में हुआ है तो आपको डेफिनेटली स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए। बट ये मैं देख रही हूँ कि काफी लोग मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ा दिखाते हैं एंड दे आर कंप्लेनिंग अबाउट सीनियर्स एंड स्टफ। तो ये सब यार आई वुड जस्ट से करके कुछ मतलब नहीं है। ट्राई टू बिकम मोर टफ, ठीक है। मुझे पता है कि कुछ सीनियर्स होते हैं जो काइंड ऑफ सेडिस्ट होते हैं, जानबूझ के जूनियर्स को तंग करना चाहते हैं, परेशान करते रहते हैं। बट आई वुड जस्ट से कि ऐसे सीनियर्स को आप इग्नोर कर दो, ठीक है। जैसे ये जो मैं बता रही हूँ, जैसे ये लड़की थी जो मेरे पास आई, लाइक ठीक है, हो सकता है कोई सीनियर है जो आपको तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, बट ऐसे अगर आप आके किसी अच्छे सीनियर के पास भी आके रैंट कर रहे हो तो इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। इवन इफ यू पुट सम कंप्लेंट और समथिंग, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई एम टेलिंग यू दिस इन योर फेस कि कुछ नहीं होता है, कोई वो फैकल्टी को निकालने वाला नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका कांटेक्ट नहीं आएगा उस सीनियर के साथ दोबारा, ये नहीं होता है मेडिकल कॉलेजेस में। उनको कुछ एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यू विल स्टिल हैव टू कीप वर्किंग इन द सेम प्लेस अलॉन्ग विद द सेम सीनियर। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग सिचुएशंस ऑकवर्ड, जस्ट एक कान से सुनो और निकाल दो। इसका ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा खुद को स्ट्रेस मत दो, दूसरों को स्ट्रेस मत दो, अपने से दूर मत करो अच्छे सीनियर्स को जो आपको एक्चुअली में कुछ सिखा देंगे, ठीक है। मैं बस ये बोल रही हूँ, डोंट कीप क्राइंग कि यार मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरी गलती भी नहीं थी। इट्स ओके, बोल दिया, सुनो, छोड़ दो। दैट इज व्हाट आई वुड से यू शुड बी डूइंग। एक और चीज मैं जो बोलना चाहती हूँ, दैट इज कि डोंट ट्राई एंड बी ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, अगेन जो मैं मेडिकल कॉलेज में काम कर रही हूँ यही मैंने देखा है। मैं कुछ बोलूंगी नहीं, लाइक मैं बस ये बता रही हूँ ना कि कुछ अच्छे सीनियर्स हैं यार, मेरी तरह भी कुछ लोग हैं बचे हुए इस दुनिया में। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप जो अपने रेजिडेंसी जर्नी से जा रहे हो, कुछ टॉक्सिक सीनियर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे जो आपका जीना हराम करके रखेंगे एंड दे विल नॉट लेट यू लिव पीसफुली एंड मेक योर लाइफ हेल। बट इनको आपको झेलना पड़ेगा। मैं बस ये कह रही हूँ कि कुछ जैसे अच्छे सीनियर्स होते हैं जो आपको पीसफुली चीजें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जिनसे आप एक्चुअली में सीखने वाले हो। उनको अपने से दूर मत करो यार, क्यों करना चाहते हो। सो जस्ट फॉर दैट, क्योंकि मैं वो फील करती हूँ और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों से मैं दूर भागती हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, डोंट बी ओवर स्मार्ट। आज ही मेरे साथ ये चीज हुई है। आई टेल यू व्हाट हैपेंड। ये हुआ कि चलो मैंने ना बैग लिया हाथ में, सो वी वर एक्सटुबेटिंग अ पेशेंट। मैंने बैग हाथ में लिया एंड आई वाज जस्ट सीइंग कि मतलब मूवमेंट कैसा है, क्या है। आई सॉ द EtCO2 इज अप, ठीक है। तो मुझे हाइपर वेंटिलेट करना था। आई जस्ट मतलब मैं वॉल्व बस क्लोज करने के लिए मैंने ऐसे हाथ बढ़ाया एंड साइड से एक जूनियर है मेरी जो 3rd ईयर है, एंड शी इज लाइक, मैम EtCO2 बढ़ रहा है, आप हाइपर वेंटिलेट कर दो। I was like, that is exactly what I, picked up the bag actually for, to see what is going on and to actually do that. तो ये चीज मेरे को थोड़ी मतलब ठीक है, आप अपना बता रहे हो, बट द वे यू से थिंग्स टू योर सीनियर एंड द वे यू आर सजेस्टिंग थिंग्स, ऑब्वियसली आप ओपिनियन दे सकते हो। जैसे मैं हूँ, जो मेरी HOD है, शी कीप्स एन आई ऑन एवरीथिंग, ठीक है। शी वांट्स अ रिपोर्ट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द OT एंड स्टफ। तो उनको मैं रिस्पेक्टफुली चीजें बता देती हूँ, उनको मैं अपने ओपिनियंस भी देती हूँ कि मैम इसमें ब्लॉक लगा दिया जा सकता है, ये है वो है। बट जस्ट गिविंग अ कमांड टू योर सीनियर इज समथिंग दैट इज नॉट ओके। आप सजेस्ट कर सकते हो चीजें, आप अपना एक तो टोन वॉच करो सीनियर्स को जब भी आप बात कर रहे हो। और सेकेंडली आई वुड जस्ट से डोंट डू दिस या डोंट ट्राई एंड बिहेव ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं आजकल, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जिनको लगता है कि 2-3 साल इन्होंने करा है तो दे कैन डू। एंड आई हैव सीन द सेम पर्सन not being able to intubate a patient, not being able to bag and mask a patient। आपके आप 3rd ईयर में आके भी आपको नहीं आ रहा है चीजें, you need someone to teach you and at that point of time you are acting over smart।
वॉट, मतलब क्या मिलेगा आपको ऐसा बिहेवियर दिखा के, मुझे नहीं पता क्या इनके दिमाग में चलता है, मुझे नहीं पता. एंड आई जस्ट वॉन्ट you guys, I think whoever is watching me would be people like me, क्योंकि जो ओवर स्मार्ट काइंड ऑफ पीपल है नहीं देखेंगे शायद मेरा वीडियो, या अगर आप हो भी तो I would just suggest don't keep this kind of behavior. It is not going to get you anywhere, especially in your residency. एक बार आपके पास MD की डिग्री आ जाए, उसका जितनी स्मार्टनेस दिखानी हो आप दिखा लेना, that is all right. But obviously during your residency it is not going to get you anywhere. आपको कुछ मिलेगा नहीं इस चीज़ का. तो I would just say डोंट डू दिस यार, क्योंकि आप मतलब जहाँ से आप सीख सकते हो आप उन्हीं लोगों को दूर भगा रहे हो, एंड इट्स नॉट गोइंग टू गेट यू एनीथिंग. सो डोंट ट्राई एंड एक्ट ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ योर especially good seniors. Another thing I would like to say is do not get involved in any kind of politics. ठीक है, अगर आपके आजू बाजू हो भी रहा है, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो, कोई ज़रूरत नहीं है अपना ओपिनियन रखने की, चीज़ों को बताने की, ये वो, ठीक है. It's not a good idea to get into fights or anything in your residency. आप अपना काम पे फोकस करो. I would just say see there will be a lot of noise around you. आपको लोग मिसअंडरस्टैंड भी करेंगे, आपके बारे में चीज़ें बोली जाएंगी, बहुत कुछ होगा. I would just say cut all the noise. सब चीज़ें आप इग्नोर करो. जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योर सब्जेक्ट दैट यू हैव चॉजन. ठीक है, मेरा भी यही चीज़ था. एंड वन ऑफ माई थर्ड ईयर्स, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि एक मैंने रेसिडेंसी पे सर्वाइविंग रेसिडेंसी वाला एक वीडियो बनाया जहाँ मैंने बताया कि आई वॉज अबाउट टू क्विट माई रेसिडेंसी बिकॉज ऑफ फीलिंग लाइक आई एम नॉट एबल टू कैच अप, मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी. तो मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था. बट द वन थिंग that my third year senior said to me was, there's a lot of like toxicity around, there's a lot of people around, there's a lot of noise around, but anesthesia is a really good subject that you have chosen. So don't choose anesthesia, don't choose the people around, क्योंकि ये लोग permanent नहीं है. Anesthesia is always going to be with you. So this is what she told me, and I think that is what every resident should remember. आपने जो भी field choose किया हो, आपने वो सब्जेक्ट के लिए रेसिडेंसी चूज किया है, you've chosen to do residency in that particular field because of your love for that subject. So do your residency with love for that subject. Cut everything else, cut down on everything else. Don't pay attention to what people are saying, whatever is going on around you. No need. I would just say you will it's good to make connections, like I've said in a few of my previous videos. It's good to have connections, friends, if you can even find one or two good batchmates who are able to support you, it is a lot. आपको और कुछ की नीड नहीं है. For me it was one of my seniors, and for you whoever is around, जो जिससे भी आपका वाइब मैच हो जाए, ऐसा कोई एक या दो होना चाहिए. रीज़न बीइंग उनको पूरा सीन पता होता है, उनको पूरा डिपार्टमेंट पता होता है, लोग कैसे हैं पता होता है, सब कुछ पता होता है. एंड व्हेनेवर एनीथिंग बैड हैपेंस, एनी सिचुएशन कम्स अप विथ यू, तो वो लोग हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, एटलीस्ट टू गिव लिसनिंग ईयर टू यू. तो वो आपकी चीज़ें समझ पाएंगे, आप उनको थोड़ा अपनी दिल की बातें बता दोगे, हल्का कर लोगे अपने आप को. तो दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई फील कि आपके पास ऐसे काइंड ऑफ कनेक्शंस होने चाहिए थ्रू आउट योर रेसिडेंसी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाहर के लोगों को अगर आप बताओगे भी, वो ठीक से आपको समझ नहीं पाएंगे, आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे इन द वे दैट दीज पीपल हु आर फ्रॉम द डिपार्टमेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And yeah, that's all that I want to tell you all. And काफ़ी लंबा हो गया वीडियो. Anyhow, hope this video is helpful, and let me know if you have any issues that are coming up or anything related to your residency, any questions, and I'll be happy to answer them or take up another video for your question. And I'll see you for another video.